Problems are done already. We have done some problems how to write dual of the primal. That concept is clear to all of you. Yes, sir. So next topic, duality theorems. There are some theorems. Duality theorems. First theorem is, these are given on page 134 from your book. You can see from there some problems, some theorems I will prove here. The dual of the dual is primal. The dual of the dual is primal. If you have a primal, take its dual and then again its dual, then you will go back to the primal. So this thing we will prove. Proof is quite easy. Consider any primal problem. Suppose I am considering any primal problem because I want to prove it in general. I am taking any primal. Let the primal be some. I am taking maximization problem. Right? You can start with minimization also. That's not a problem. Suppose this is a primal problem. I am taking canonical form. So AX canonical form means in matrix form I am writing, and AX less than equal to. This is not. I am not taking questions. I am taking equality, inequality. X greater than equal to 0. Okay. We understood X means I am taking some Rn, and variable say A is a matrix M cross N, and all the concepts are clear. So you can write in matrix form directly. So I will show that dual of dual. So firstly I will write its dual. So what is the dual? Batao Bashar Alam. What is the dual? Minimization of Z star. Minimum. हाँ, minimization of Z star. यहाँ पर B आ जाएगा ऊपर, है ना, C के स्पेस पे. सपोज न्यू वेरिएबल्स विल बी सम W एंड A का हो जाएगा A ट्रांसपोज, X के प्लेस पे हो जाएंगे न्यू वेरिएबल्स W and this less than equal to will become greater than equal to and this C will become here C. यहाँ C ट्रांसपोज था तो यहाँ आप C लिख सकते हो उसे, क्योंकि यहाँ C ट्रांसपोज का मतलब है यू आर राइटिंग इन कॉल रोज, तो यहाँ पे C कॉलम में आ जाएगा कि यहाँ कॉलम में होते हैं, इधर आप रो में लिख रहे हैं इसे. ठीक है. एंड W क्योंकि सारी लेस देन थे, W ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा. अगर इक्वालिटी लेते हैं आप तो W को अनरेस्ट्रिक्टेड करते हैं. ठीक. नाउ बिकॉज आई वांट टू राइट इट्स डुअल, तो फर्स्टली आई विल चेंज इट इनटू मैक्सिमाइजेशन. अगर मैं इसे मैक्सिमाइजेशन में चेंज, अभी डुअल नहीं लिख रहा मैं इसका, आई एम जस्ट राइटिंग इट इनटू अगेन अ कैनोनिकल फॉर्म. तो कैनोनिकल में इट शुड बी मैक्सिमाइजेशन ना, तो आई कैन राइट which can be written as max of some minus, suppose W capital W से ले लें, is equal to minus B transpose and W, है ना. ये तो होता है max of minus is equal to minus. इसे अगर मिनिमाइज को चेंज करते हैं तो क्या बताया था, मिनिमाइज ऑफ माइनस मिनिमाइज ऑफ Z स्टार is equal to max of minus Z, है ना, ये होता है. तो माइनस इधर ले लिया आपने, मैक्स ऑफ माइनस W इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, इसका माइनस ये हो गया मैक्स ऑफ माइनस दिस. आई कैन राइट सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स. इसे भी आई विल टेक लेस देन बिकॉज आई एम राइटिंग कैनोनिकल फॉर्म. तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते बोथ साइड, यू कैन राइट माइनस A ट्रांसपोज W लेस देन इक्वल टू माइनस C W आर पॉजिटिव. ठीक. कैनोनिकल फॉर्म लिखते. नाउ द डुअल ऑफ दिस, तो ये इट इज सेम, बोथ आर इक्विवेलेंट है ना, ये इक्विवेलेंट है. अब इसका डुअल लिखने का मतलब इसका डुअल. सो नाउ इट्स डुअल इज
इसका डुअल, तो क्या होगा भाई, मिनिमाइजेशन, सपोज जेड स्टार ले, जेड बार ले, जेड स्टार लिया था, यू जस्ट टेक जेड बार, ऐसा नोटेशन। तो मिनिमाइजेशन ऑफ जेड बार इज इक्वल टू हाउ मच, नाउ दिस माइनस सी विल कम हियर, तो माइनस सी ट्रांसपोज, ओके, एंड x, variable will come x, and what will happen, now this इसका ट्रांसपोज है ना, माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि हम क्या लेते हैं ए का ट्रांसपोज, यू विल टेक नाउ ए की प्लेस पर दिस, तो माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जाएगा, जो w के वेरिएबल से माइनस b, x ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। मिनिमाइजेशन, इसको z बार लिख दिया। अब यहाँ पर you will take the right hand side constant, so right hand side constants क्या थे, माइनस c, so you will take minus c transpose, w की जगह पर x, and the transpose of this coefficient matrix, so minus a transpose का transpose x greater equal to, and this will come here with without transpose, ये इसका डुअल लिखा है मैंने, which is equivalent to, ये किसके इक्विवेलेंट है, which is, इसको अगर मैं मैक्स में लिखूं तो which is equivalent to, इसे अगर हम मैक्स में लिखेंगे तो क्या लिख सकता हूं मैं, मैक्स ऑफ z is equal to c transpose x subject to transpose, subject to a transpose, transpose is a x माइनस ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन इक्वल टू b x इक्वल टू 0, x ग्रेटर इक्वल टू 0, क्या x ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको इसके इक्विवेलेंट होगा ना, मैक्स ऑफ z और माइनस सी का क्या हो जाएगा, सी ट्रांसपोज एक्स, क्योंकि z बार क्या था, माइनस w था, तो मैक्स z सी ट्रांसपोज एक्स, ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज ए, माइनस से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड विल बिकम ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ये क्या है, ये विच इज योर प्राइमल, ओके। सो डुअल लिया, डुअल का डुअल लिया, दैट इज अगेन अ प्राइमल, बताइए। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम इट्स कॉल्ड थ्योरम 2, if you are numbering theorem 2, it is called weak duality theorem, weak duality theorem, what it states, let x not be a feasible solution to the primal problem, primal problem आपकी suppose max z is equal to cx, ax less than equal to b, x greater than equal to 0, ठीक है, प्राइमल में मैक्स में ले दूँ, सपोज x नॉट बी द फीजिबल, फीजिबल सॉल्यूशन है, देखो feasible means what, it will be satisfying all the feasible condition, है ना, एंड इट मे बी द ऑप्टिमम आल्सो, अगर ऑप्टिमल वैल्यू दे देगा तो ऑप्टिमम हो जाएगा, बट अभी ये फीजिबल कह रहा है, so let x not be a feasible solution and w not be a feasible solution to its dual, to its dual, यानी जो प्राइमल की डुअल बनाई उसका सपोज फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, w नॉट,
तो इसके डुअल डुअल क्या होगी, मिनिमाइज ऑफ z स्टार इज इक्वल टू सम b ट्रांसपोज w a ट्रांसपोज w ग्रेटर इक्वल टू, अब अगर यहाँ c लिया था तो देखो यहाँ c ट्रांसपोज लिख दीजिए, यहाँ c ट्रांसपोज लिख रहे थे अगर तो यहाँ c लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ c कॉलम में होता है, यहाँ ये c रो में है, ये कॉलम में, तो वो आपकी डिपेंड करेगा आप ट्रांसपोज कहाँ लिख रहे हैं। मैंने यहाँ c ट्रांसपोज नहीं लिया था तो यहाँ लिख दिया, अगर आप यहाँ c ट्रांसपोज लिख रहे हैं प्रॉब्लम में तो यू कैन राइट इट हियर, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। W ग्रेटर इक्वल टू, ठीक है, ये आपको गिवन है, x नॉट फिजिबल सॉल्यूशन है प्राइमल का, W नॉट बी द फिजिबल सॉल्यूशन इज डुअल, then the value of the objective function at feasible solution x naught, that means c x naught है ना, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू हो गई एट x naught, it will be less than equal to b transpose w naught, the object value of the objective function at the feasible solution of the dual problem will be greater than equal to the value of the objective function of the primal problem, यानी कि जो मैक्स वाली वैल्यू होगी और जो मिनिमम वाली वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपके पास प्राइमल मिनिमल में ले लूं मैं और डुअल मैक्सिमल में ले लूं तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, बट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम की जो ऑब्जेक्टिव वैल्यू होगी दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात ये? Yes, sir. तो मैक्सिमाइजेशन की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस है मिनिमाइजेशन से, ये कहना चाह रहे हैं। देखिए इसका भी प्रूफ, इसे मैं प्रॉब्लम से भी एक्सप्लेन करूंगा आपको और इसका ग्राफिकली एक्सप्रेशन भी दूंगा, हाउ इट इज पॉसिबल। पहले प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ इज एक्स नॉट फीजिबल सॉल्यूशन गिवन टू यू, है ना, तो अगर एक्स नॉट फीजिबल सॉल्यूशन है तो इट विल बी सेटिस्फाइंग द फीजिबल कंडीशन, दैट मींस a x naught will be less than equal to b and x naught greater equal to 0, है ना, इसके लिए प्राइमल के लिए, and also w naught will satisfy this constant conditions, a transpose w naught greater equal to c transpose and w naught greater equal to 0 होगा, okay, so this implies that this I can write, अगर मैं दो बोथ साइड ट्रांसपोज मूव कर दूं तो आई कैन राइट सी को मैं इधर लिख दे रहा हूँ लेस देन इक्वल टू W नॉट ट्रांसपोज ए, ठीक है, बोथ साइड ट्रांसपोज कर दिया है, बस ट्रांसपोज करने से ये साइन चेंज नहीं होगा, है ना, बस सी ट्रांसपोज सी हो जाएगा, इसका ये बन जाएगा, ओके, ट्रांसपोज ले लिया बोथ साइड, तो दिस इंप्लाइज दैट, तो इनइक्वालिटी सी की तरफ भी अभी स्मॉलर ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं करी, बस मैंने सी को लेफ्ट में लिख लिया क्योंकि मुझे प्रूफ में सी एक्स नॉट चाहिए इसलिए, ठीक है, प्रूफ क्या करना है, सी एक्स नॉट, तो सी तो मिल गया, अब क्या करें, एक्स नॉट से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, तो यू विल बी गेटिंग सी एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू W नॉट ट्रांसपोज ए एक्स नॉट, ओके, अब ए एक्स नॉट किससे लेस है ऑलरेडी, बी से, है ना, so I can put the greater side W naught transpose B since AX not less than equal to B, since AX not less than equal to B, okay, so what you got, so this implies that CX not less than equal to, अब W naught transpose B को I can write B transpose W naught, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है आपस में, ये B आपका
एक वेक्टर है और डब्ल्यू नॉट ट्रांसपोज वेक्टर है, तो योर डब्ल्यू नॉट ट्रांसपोज बी लिख लो आप, या बी ट्रांसपोज डब्ल्यू नॉट, एक ही बात है। ये जस्ट कॉलम और रो का आप इंटू कर रहे हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिख ले या लिख ले, आएगा आपके पास सेम ही। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी ट्रांसपोज डब्ल्यू नॉट, है ना। तो ये प्रूव करना था। बताइए। सर ये देखो, डब्ल्यू नोट और बी है तो दोनों मैट्रिक्स ना। नहीं यहाँ पे मैट्रिक्स है, लेकिन कॉलम और रो मैट्रिक्स है ना ये। डब्ल्यू नॉट क्या है आपके पास, डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, डब्ल्यू बिलोंग्स टू, कितना था यहाँ पे एम वेरिएबल्स है सपोज, W1 W2 WM, तो डब्ल्यू बिलोंग्स टू है RM, यहाँ x बिलोंग्स टू RN था। तो W क्या होता है, जितने कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तो कॉन्स्टेंट्स कितने लेते हैं हम, M, तो W बिलोंग्स टू RM है। ओके, तो W ट्रांसपोज, W का मतलब ये है कि अगर आप W वेक्टर लिख रहे हैं तो W1 W2 WM लिख रहा है। अगर मैं W ट्रांसपोज लिखूंगा तो इसका मतलब इसे मैं कॉलम में लिख रहा कॉलम हूँ, में बस बस ये फर्क होता है। ठीक है, तो जब यहाँ आप इसको इंटू करेंगे, यहाँ पर क्या डब्ल्यू नॉट ट्रांसपोज का मतलब कितना हुआ, M×1, है ना। तो डब्ल्यू ट्रांसपोज है M×1, और बी क्या है, बी क्या था, बी था RN का। कितने लिए थे हमने, कांस्टेंट्स कितने लिए थे यहाँ, M थे, तो बी भी RM में था ना, जैसे बी भी RM में था, तो यहाँ बी भी सेम था। तो आप डब्ल्यू नॉट ट्रांसपोज बी लिखेंगे या बी ट्रांसपोज डब्ल्यू नॉट, सेम थिंग आएगी, आएगा क्या, वन, एक ही वेक्टर आएगा ना, जैसे समझ में आ गया। वन एक स्केलर आएगा प्रोडक्ट, चाहे ऐसे लिख लो ऐसे। ये क्या है, M×1 इंटू वन क्रॉस इंटू 1×M, तो ये प्रोडक्ट करेंगे तो एक स्केलर ही आएगा निकल के। इसको देखो ग्राफिकली, आप यू कैन सब अंडरस्टैंड दिस थिंग ग्राफिकली। अगर मैं इसे ग्राफिकली एक्सप्लेन करूं, चलो नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, ग्राफिकल explanation. Suppose you have somewhere your value is given. Suppose this is the optimal value. ठीक है, ये ऑप्टिमल वैल्यू है सपोज आपके पास, एक प्रॉब्लम है, here you have plus infinity, here you have minus infinity, and you are approaching, अब you are approaching towards, होता क्या है प्रॉब्लम में, क्या हम we always approach towards the optimal value, ये तो होता है। तो जो ऑप्टिमल वैल्यू होगी W स्टार, प्राइमल की ले लूं या मैं ऑप्टिमल ले लूं ड्यूअल की, ये हमेशा सेम होती है ना। अब प्राइमल में क्या हो रहा है, प्राइमल प्रॉब्लम इज योर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो प्राइमल में इट मींस व्हाट, कि यू वांट टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू। तो प्राइमल में आप जब मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं तो यू आर मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर। प्राइमल में क्या होता है कि हमें मैक्स तक पहुंचना है। तो सपोज इट इज योर प्राइमल, अगर मैं लोअर पार्ट इज आई एम टेकिंग प्राइमल, सो प्राइमल में आई एम अप्रोचिंग टुवार्ड्स मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या होगा कि कुछ वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, कैलकुलेट कर रहे हैं मिनिमम से, एंड यू आर गेटिंग टुवार्ड्स मैक्सिमम, है ना। यहाँ पे कहीं जेड वैल्यू आई, यहाँ पे Z1, ऐसे करते करते यू गॉट Z स्टार। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, कि जो Z1 है वो ग्रेटर देन है Z से, है ना, और जो Z स्टार है ये ग्रेटर देन होगा आपका Z1 से, एंड सो ऑन। तो इन प्राइमल यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम लोअर टू हायर। डुअल प्रॉब्लम क्या है, डुअल में आपको मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज का मतलब क्या हुआ, कि यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर। डुअल कहाँ बनेगा प्राइमल का, अगर ये प्राइमल है तो इसका डुअल ये होगा, डुअल में यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, इस तरीके से, है ना। तो हेयर यू आर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यूज एंड यू वांट टू मिनिमाइज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि डुअल में हमने मिनिमाइज दिया है। तो डुअल में व्हाट्स हैपनिंग, कि डुअल में योर वैल्यूज आर, सपोज इट इज W, इट इज W1, है ना, योर वैल्यूज आर डिक्रीजिंग। बट वैल्यू अगर आप देखेंगे, देखो, तो जो वैल्यू यहाँ पर है इसकी, ये क्या है, W किससे बड़ा होगा, लेकिन
Z1 से तो बड़ा होगा ना अगर वैल्यू पूछूंगा मैं। गेटिंग माय पॉइंट, Yes. है ना, क्योंकि डुअल में यू आर गेटिंग these values, so these values are higher compared to this, and here you are tending from higher to lower, here you are tending from lower to higher। तो इसलिए डुअल में जो भी वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो हमने वैल्यू लिखी है ए सी एक्स नॉट, तो सी एक्स नॉट क्या होगा, सी एक्स नॉट का मतलब यहाँ कहीं वैल्यू होगी कुछ Z1 कुछ, है ना, ये आएगी। और डब्ल्यू एक्स नॉट जो है आपके पास, ये बी ट्रांसपोज डब्ल्यू नॉट, ये कुछ वैल्यू यहाँ होगी, तो आपको दिख ही रहा कि ये हमेशा इससे बड़ी रहेगी। ओके, इसलिए मिनिमाइजेशन वाला जो पोर्शन होगा दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमाइजेशन। ये वीक ड्यूअलिटी थ्योरम है। ओके, Okay, sir. इसे आप वेरीफाई कर सकते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल है, इस बुक में नहीं था, दूसरी बुक में था, उसमें वेरीफाई करा हुआ है, तो देखते हैं पेज 17। देखिए, इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं इस एग्जांपल से। तो ग्राफिकली यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीन। वेरिफिकेशन अगर हम करना चाहें, सपोज प्राइमल आई एम टेकिंग पी, मैक्सिमाइज ऑफ z इज इक्वल टू x1 plus 5x2 plus 3x3 subject to the constants ये आपके पास एक प्राइमल है सपोज, ठीक। इसका अगर मैं डुअल लिखूं, यही डुअल लिख दे रहा हूँ इसका, तो डुअल यू विल राइट मिनिमाइज ऑफ w इज इक्वल टू 15 w1 प्लस 20 w2, एंड इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं ना, 2 w1 प्लस w2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, w1 प्लस 6 w2 ग्रेटर इक्वल टू 5, 4 w1 प्लस 5 w3 ग्रेटर इक्वल टू 3, w2 टू कॉन्स्टेंट्स है तो टू वेरिएबल्स आएंगे। ओके, ये बन गया। अब सपोज आई एम टेकिंग एनी फीजिबल सॉल्यूशन प्राइमल, है ना, प्राइमल में कोई फीजिबल सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि फीजिबल सॉल्यूशन के लिए हमने प्रूव करा है कि एक्स नॉट फीजिबल सॉल्यूशन। तो इसका फीजिबल सॉल्यूशन क्या होगा, जो इन इक्वलिटीज को सेटिस्फाई करेगा। सपोज हमने ले लिया, यहाँ कर देता हूँ इसके आगे, ठीक है, लेट x1 x2 x3 इज इक्वल टू 1। ये बताइए, ये फिजिबल सॉल्यूशन है क्या प्राइमल का? यस सर। सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि आप जब 1 यस 1 1 इक्वल लिखेंगे, इक्वल टू देखिए 4 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 लेस देन है, और 1 प्लस 6 7 और प्लस 5 12 लेस देन है ना, और पॉजिटिव है। तो ये फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ पी प्राइमल। डुअल का ले लीजिए जरा, डुअल में क्या लेना है कि इनसे बड़ा हो, तीनों इक्वलिटी से बड़ा हो। सपोज आई एम टेकिंग लेट w1 इज 1 w2 इज 2। देखिएगा जरा क्या है ये, यस सर। ऑफ डुअल रखो जरा, 1 रखा, देखिए 2 1 प्लस 2 4 ग्रेटर देन 1 है, सेटिस्फाई कर रहा है, सबको सेटिस्फाई करना चाहिए, ऑल द कांस्टेंट मस्ट बी सेटिस्फाई। यहाँ रखा 1 प्लस 6 7 ग्रेटर देन वाला, ठीक है। इधर रखा 4 1 द 4 5 2 द 10 30, ये भी ठीक है ना। तो ये डुअल है। अब इस पे अगर हम ऑब्जेक्टिव वैल्यू निकाले, ठीक, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, तो z वैल्यू इज हाउ मच एट 1 1 1 1 1 1 रखो जरा, कितना आ रहा है 9 9, और w की वैल्यू क्या आ रही है 15 1 द 50, यहाँ 55 45 55, ठीक है। 55 हाँ, तो here you can see that max z जो वैल्यू है
है ना। ये क्या था आपके पास, ये सी एक्स नॉट था, सी एक्स नॉट जो था, दिस इज Yes, sir. लेस देन Smaller. मिनिमम ऑफ डब्ल्यू, है ना। इस तरीके से कोई भी आप पॉइंट ले ले, मैंने तो आर्बिट्रेरी लिया है, तो हमेशा जो आपके पास सी एक्स नॉट होगा इधर, ये लेस देन इक्वल टू हो सकता है एक बार को, अगर इक्वल हो जाएगा तो वही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, जो हमने प्रूफ किया है। यू कैन वेरीफाई बाय टेकिंग एनी प्रॉब्लम एंड टेकिंग द फीजिबल, लेकिन फीजिबल्स लेना ध्यान रखना है, कोई ऐसा पॉइंट वेरिएबल मत चूज करिएगा जो किसी कांस्टेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो, फिर ये थ्योरम फेल हो जाएगी। feasible solution मतलब satisfying all the constraints. Okay, so you can verify also by taking any example. Theorem 3, optimality theorem भी बोलते हैं इसको, optimality theorem. What it says, वह इसी थ्योरम का एक एक्सटेंशन है जरा सा, टू का ही, let x not be a feasible solution, let x not be the feasible solution to the primal, प्राइमल वही आपकी जो थ्योरम 2 में दिए हुए हैं ना, मैक्सिमाइज z वाली, वही ले रहे हैं बार बार, एंड W not be the feasible solution to the dual, dual आपने क्या लिख दिया, जो थ्योरम 2 में डुअल था, वही मिनिमाइजेशन वाला। ठीक है, ये वाला, ये डुअल है, ये प्राइमल है। इफ CX नॉट इज इक्वल टू B ट्रांसपोज W नॉट, ठीक है, अब ये कंडीशन दे दी कि इफ उस पॉइंट पर ऐसा हो जाए कि CX नॉट इज इक्वल टू B ट्रांसपोज W नॉट हो जाए, तो क्या होगा भाई बताओ, देन Optimum. हाँ, both x naught and w naught are the optimum solutions, optimum solutions to the primal and dual respectively। ठीक है, मतलब क्या कि ये इक्वल जो होंगे हमेशा ऑप्टिमल पॉइंट पर, ऑप्टिमम पॉइंट पर ही इक्वल आएंगे, है ना। जहां पर भी, जैसे आप यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ जिस पॉइंट पे वैल्यू सेम आ रही है, दैट विल बी योर ऑप्टिमम पॉइंट। वही कह रहे हैं कि इफ सी एक्स नॉट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज डबल नॉट, कोई ऐसा फिजिबल पॉइंट जिस पर बोथ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैव सेम वैल्यूज, दैट पॉइंट विल बी द ऑप्टिमम वैल्यू, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन, इसको प्रूव कर सकते हैं इजीली आप, सॉल्यूशन नहीं, प्रूफ थ्योरम है, थ्योरम 2 का यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं इजीली, है ना। देखो, ऑप्टिमल सॉल्यूशन दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा आपको, कि अगर कोई एक्स नॉट स्टार ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू इन मैक्सिमम वैल्यू। सपोज हमने कंसीडर करा, लेट एक्स नॉट स्टार बी एनी अदर फीजिबल सॉल्यूशन, टू द प्राइमल। हमें अगर सी एक्स नॉट को ऑप्टिमल दिखाना है तो क्या दिखाना होगा कि सी एक्स नॉट इज द हाईएस्ट वैल्यू, है ना, सी एक्स नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू। और अगर बी ट्रांसपोज डब्ल्यू नॉट को आपको ऑप्टिमम वैल्यू दिखानी है, व्हाट यू हैव टू शो, बी ट्रांसपोज डब्ल्यू नॉट इज द मिनिमम वैल्यू, है ना, लोवेस्ट वैल्यू। तो लेट एक्स नॉट स्टार बी एनी अदर feasible solution to the primal, then by theorem 2 जो भी हमने प्रूफ करी है, क्या होगा, सी एक्स नॉट स्टार विल बी लेस देन इक्वल टू बी ट्रांसपोज डब्ल्यू नॉट, है ना। हमने शो किया है कि सी एक्स नॉट हमेशा लेस रहेगा किसी भी वैल्यू के लिए, तो अगर एक्स नॉट स्टार इज द feasible solution लेस होगा, ओके। और ये कंडीशन के बिना देखो, ये किसके इक्वल है, सी एक्स नॉट के। इट मीन्स व्हाट,
कि सी एक्स नॉट स्टार इज लेस देन इक्वल टू सी एक्स नॉट। इसका मतलब क्या है? एक्स नॉट इज एन, बताइए, सी एक्स नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी एक्स नॉट स्टार वेयर एक्स नॉट स्टार इज एनी arbitrary feasible point. So it means x naught star is an optimal solution to the primal problem, है ना? क्योंकि प्राइमल प्रॉब्लम हमारी क्या थी? मैक्सिमाइजेशन टाइप की थी। समझ में आ रही है बात? तो प्राइमल का शो हो गया। सिमिलरली क्या करें भाई? अगर आई वांट टू शो W नॉट इज द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ डुअल, डब्ल्यू नोट स्टार ले लेंगे, ग्रेटर देन रखेंगे उससे। बस लेट W स्टार बी एनी अदर फीजिबल सॉल्यूशन, बिल्कुल सेम वे में टू द डुअल। डुअल का ले लीजिए अब आप, डुअल मिनिमाइजेशन में ध्यान रखना है। देन बाय थ्योरम 2 क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज, वैसे ही वही लिखेंगे आप, है ना? डायरेक्ट लिख दूं मैं? क्या लिखेंगे पहले आप? ये लिखेंगे सी एक्स नॉट, चलो एक स्टेप और लिख दे रहे हैं, सी एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल टू बी ट्रांसपोर्ट डब्ल्यू नॉट स्टार, है ना? और सी एक्स नॉट इज हाउ मच? बी ट्रांसपोज डब्ल्यू नॉट। तो इट मीन्स व्हाट? क्योंकि वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है कि बी ट्रांसपोज डब्ल्यू नॉट इज मिनिमम देन दिस, क्यों, है ना? यहाँ मिनिमाइजेशन में लेफ्ट में आएगा। ये प्रूव करना था, ठीक है? इन दिस यू कैन प्रूव इट। थ्योरम 4 का देखो स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, आप प्रूफ खुद देखेंगे इसका। वैसे तो ये डायरेक्ट उस टाइप वही है जो हमने करा है। दे आर सेइंग दैट इफ x नॉट is an optimum solution to the primal, प्राइमल वही है आपकी थ्योरम 2 वाली मैक्स, ठीक है? इसलिए मैं बार बार थ्योरम 2 का स्टेटमेंट कर रहा हूं। देन देयर एग्जिस्ट अ feasible solution W naught to its dual, okay, such that feasible solution एग्जिस्ट करेगा और ये इससे क्या हो जाएगा? बाय थ्योरम 2 के अगर इक्वल है तो वो ऑप्टिमल भी हो जाएगा, है ना? मीन्स ये कि अगर प्राइमल के पास प्राइमल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन है तो डुअल पर भी आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, है ना? ये कह सकते हैं। ये एक्चुअली आपकी थ्योरम जो 5 है वो इसी का एक्सटेंशन है आगे। दैट इज फंडामेंटल। इसमें तो इतना दिया हुआ है कि इफ x naught is an optimal solution then there exists a feasible solution W naught to its dual such that cx naught is equal to b transpose W naught। एक feasible solution एग्जिस्ट करेगा जो इस इक्वालिटी को होल्ड करेगा। थ्योरम 3 हमने प्रूव करा कि अगर इक्वालिटी होल्ड हो रही है तो वो क्या होगा? W naught will also optimal solution। That is your strong duality theorem, theorem 5, strong duality theorem। Theorem 2 was weak, it is strong duality theorem। If the primal or dual has a finite optimum solution, then the other problem also possesses a
finite optimum solution and the optimum values of the objective functions are equal. Of the objective functions of two problems are equal. Of two problems are equal. ठीक है भाई, ये स्ट्रॉन्ग थ्योरम हो गई। जो आपका प्रूफ क्या है, ये इसका जो 2 और 3 4 का प्रूफ है उसी से डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगी आपकी कि अगर प्राइमल और डुअल किसी के भी पास फीजिबल फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो दूसरी प्रॉब्लम पर भी डेफिनेटली ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा और उनके ऑब्जेक्टिव वैल्यू इक्वल होगी, है ना। ये आपका थ्योरम जो हमने प्रूव करी है अभी, उससे प्रूव हो जाएगी डायरेक्ट थ्योरम 4 से और थ्योरम 3 से, है ना।